Today is a Christmas day. आज बड़ा दिन है। Hallelujah. हालेलुया। Everywhere people are rejoicing. और हर जगह लोग आनंद मना रहे हैं। I see many churches are decorated. और मैंने देखा है बहुत सारे कलीसियाओं को सजा हुआ। There are so many programs in the church going on. और कलीसियों में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। Children are so happy. बच्चे बहुत खुश हैं। And everybody is looking forward to having good dinner tonight. और आज हर कोई इस बात को देख रहा है कि आज रात में एक उनको अच्छा खाना मिलेगा। New clothes. नए कपड़े। That's very good. ये बहुत अच्छा है। And therefore we also wish you a very, very happy Christmas. और आज इसीलिए हम भी आपको बड़े दिन की मुबारकबाद देते हैं। We love you. हम आपको प्रेम करते हैं। And we will continue to love you. और हम लगातार आपको प्रेम करते रहेंगे। Because the love came down on the earth called Jesus Christ 2000 years ago in a village called Bethlehem. क्योंकि आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रेम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में बेथलेहम में आ गया। Hallelujah. हालेलुया। So we wish you and your family and your dear ones a very, very happy Christmas. और इसलिए हम आपको, आपके प्रियजनों को, आपके परिवार को बड़े दिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। This year has been good to many people. और ये साल बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। We have enjoyed this year very much. और हमने इस वर्ष में बहुत अधिक आनंद मनाया। But last month, लेकिन पिछले महीने my dear brother, younger brother, went to be with the Lord. और मेरा छोटा जवान भाई परमेश्वर के पास चला गया। And I know that some of you are also grieving for your loved ones who have left you. और मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग दुखी होंगे क्योंकि आपके प्रिय लोग आपको अकेला छोड़कर चले गए। I have some news from my dear ones और मुझे मेरे प्रिय लोगों से कईयों से खबर मिली है that some of their family members have already gone to be with the Lord this year. और उनमें से बहुत सारे लोगों के प्रियजन इस वर्ष में प्रभु के पास चले But गए। anyhow, we have to march forward in the kingdom of God. लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाते हैं। We have consoling message for you. हम आपको सांत्वना का संदेश देते हैं। And I also need the consolement from God's word. और मैं भी परमेश्वर के वचन से सांत्वना पाना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Today I just want to share with you few thoughts from the book of Matthew. और मैं आज आपके साथ मत्ती की पुस्तक से कुछ विचारों को बांटूंगा। Chapter 2, दूसरे अध्याय से verse 1 to 12. और 1 से 12 पद तक। This is very familiar passage और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पैसेज है। because on every Christmas or in Christmas season, these texts are read very often. क्योंकि बड़े दिन के अवसर पर ये जो अध्याय है दूसरा ये बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। Because these are the texts that explain how Jesus was born. क्योंकि ये जो पद हैं ये बताए जाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। I will read it in English first. मैं सबसे पहले इंग्लिश में इसको पढ़ूंगा। Then Nilu will read in Hindi. और नीलू जो है वो हिंदी में पढ़ेंगे। And we'll take few verses and explain to them so that our joy will be full. और हम फिर उसमें से कुछ पदों को लेंगे ताकि जो हमारा आनंद है वो उसको उनको पढ़ करके भर जाए। Hallelujah. हालेलुया। Matthew chapter 2 verse 1. मत्ती दूसरा अध्याय पहला पद। After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, wise men from the east came to Jerusalem. Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. In Bethlehem in Judea, they replied, for this is what the prophet has written.
But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel. Then Herod called the wise men secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make a careful research for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and incense and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. मत्ती दूसरा अध्याय 1 से 12 पद। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने कई जोशियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। Hallelujah. हालेलुया। It's a wonderful story. ये एक अद्भुत कहानी है, And it happened in a very small village called Bethlehem. और ये एक जो छोटा गांव बेथलेहम कहलाता है, वहां पर घटना घटी। Bethlehem was few miles away from Jerusalem, where King Herod was the king. जो बेथलेहम जो था यरूशलेम से कुछ ही दूरी पर था, जहां पर राजा हेरोदेस राज्य करता था। And you see, Herod did not know about this child who was the king of Jews, was born in his territory. और जो राजा हेरोदेस था वो ये नहीं जानता था कि उसके राज्य में एक राजा का जन्म हुआ है। Until then, the wise men came to him and told him about this mysterious and strange birth of a child. और जब तक ये जो विद्वान थे, जोशी थे, उन्होंने आकर ये नहीं बताया कि तुम्हारे राज्य में एक अद्भुत जो बालक है उसका जन्म हुआ है। And when they came and told him about this child,
और जब उसके पास आए और ये बताया उस बालक के विषय में, the Bible says King Herod heard this and he was greatly disturbed. और बाइबल बताती है कि राजा हेरोदेस ने ये सुना और वो सुन करके बहुत अधिक घबरा गया। For almost 2 years, he did not have any news about Jesus was born in his territory. और उसको 2 साल तक ये खबर ही नहीं थी कि यीशु का जन्म उसके राज्य में हो चुका है। So they went to the palace और इसीलिए वो महल में गए and they inquired about this child. और उन्होंने उस बालक के विषय में पूछताछ की। Obviously, a king will be born in a kingdom. और ये वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए कि जो एक राजा का जन्म होता है वो महल में ही होना चाहिए, In a palace. एक महल में। Hallelujah. हालेलुया। But you see, he was very close to this village where Jesus was born. He was still unaware of his birth. और ये जो बेथलेहम जो जगह थी वो उसके राजा के महल के बहुत ही पास में थी और राजा को ये मालूम ही नहीं था कि वहाँ पे एक बालक का जन्म हो चुका है। And those 3 wise men informed him about the birth of the Lord Jesus Christ. और 3 जो ज्योतिषी थे उन्होंने उसको बताया प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में। This has a very good lesson for us. और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सबक है इससे। We may be very close to church. हो सकता है कि हम कलीसिया के बहुत निकट हों We may be very close to Christianity. और हो सकता है कि हम मसीहत के बहुत निकट में हों We know the traditions of Christmas. और हम जो क्रिसमस के रीति रिवाज है उसको जानते हो, Decorations, new clothes and everything. और सजावट और नए कपड़े और सब चीजों को। But still we need to be informed by somebody that Jesus Christ is born. और फिर भी अभी भी हमें ये आवश्यक है कि कोई हमको बताए कि यीशु का जन्म हो चुका है। Because we have not given the birth of Jesus in our hearts. क्योंकि अभी तक हमने यीशु को अपने जन्म में, अपने हृदय में जन्म ही नहीं दिया। Herodias always depicts as the Satan. और जो हेरोदेस है वो हमेशा शैतान को दिखाता है। When the King Jesus was born in his territory, और जब उसके राज्य में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ he was greatly disturbed. और वो बहुत अधिक घबरा गया। Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु And है। this is what is happening today. और यही आज घटना घट रही है। Jesus Christ is taking birth in the hearts of many people. और यीशु मसीह आज भी बहुत सारे लोगों के हृदय में जन्म ले रहे हैं। That is why Satan is greatly disturbed. और इसीलिए शैतान जो है बहुत अधिक घबराया हुआ है। But you and I need not to be disturbed, लेकिन आपको और हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है, because Jesus has already born into our hearts. क्योंकि यीशु हमारे हृदय में बहुत पहले ही जन्म ले चुका है। Hallelujah. हालेलुया। Christmas means बड़े दिन का अर्थ है that God so loved the world. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम He किया gave his only begotten son कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, so that he might be the sacrifice on our behalf. ताकि वो हमारे बदले में उसका बलिदान किया And जाए। whoever accepts him in his life, और जो कोई उसको अपने जीवन में स्वीकार करता है he will not perish, he will receive the everlasting life in heaven. वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग में हमेशा के लिए उसको अनंत जीवन मिलेगा। He will never be perished in hellfire. और वो कभी भी नरक की आग में नष्ट नहीं होगा। This is the meaning of real Christmas. ये है असली बड़े दिन का अर्थ। Do you have this assurance, my dear brothers and sisters? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आपके पास ये आश्वासन है? If you are watching this video यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं and if you have still not received Jesus Christ in your heart, और अभी भी आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म नहीं दिया this is है, brand new opportunity for you, my dear brothers and sisters, today. तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आपके लिए एक बड़ा मौका है। Yes, you and I need to have real relationship with Jesus Christ. जी हाँ, आपके और हमारे लिए आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने वास्तविक संबंध को स्थापित करें। Hallelujah. हालेलुया। And there is one more verse I want to explain to you.
और मैं एक और पद को आपके साथ बांटूंगा, That is verse 9 and 10. और वो है पद 9 और 10। After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped the place where the child was. वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गए, और उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। King Herod wanted to kill Jesus. जो राजा हेरोदेस था वो यीशु को मारना चाहता था। Satan always wants to destroy the kingdom of God. जो शैतान है वो भी हमेशा चाहता है कि परमेश्वर के राज्य को नष्ट कर दे, But he can never do it लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं कर because पाएगा, he is a defeated enemy. क्योंकि वो एक हारा हुआ शत्रु है। So these three people, wise men, तो ये जो 3 बुद्धिमान या जोशी थे, they heard everything from Herod, और उन्होंने राजा हेरोदेस से बहुत कुछ सुना, and they went on their way. और वो अपने मार्ग पे चले गए। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों you बहनों, are hearing all rubbish things in this world. और आप इस संसार के अंदर सब खराब खराब बातें सुन रहे हैं, Every news is a disastrous news. और हर एक जो खबर है वो विनाशक खबर है। And what you are doing? तो आप क्या कर रहे हैं? Are you still interested in the worldly lives? क्या आप अभी भी सांसारिक जीवन को जीने चाहते हैं, Or you just want to leave all these things behind you और आप या फिर आप ये सारी चीज अपने पीछे छोड़ना चाहते and हैं, you want to march forward और आप आगे बढ़ना चाहते हैं where the child is? जहाँ पर बालक है। Hallelujah. हालेलुया। Now Jesus Christ is grown up. और अब प्रभु यीशु मसीह बढ़ गए He has हैं, finished his work on the cross. और उसने अपना जो कार्य है वो क्रूस के ऊपर खत्म कर Rose दिया है, again on the third day. और वो तीसरे दिन जीवित हो उठे, Went to heaven. स्वर्ग चले And गए, he is about to come back again. और अब वो फिर से दोबारा आने वाले हैं। So he is not no more child. और तो अब वो बालक नहीं है। But these three wise men, what did they do? लेकिन ये तीन जो बुद्धिमान लोग थे क्या करना चाहते थे? They continued their journey. और उन्होंने अपनी यात्रा को लगातार जारी रखा। And the Bible says the star which they had seen in the east led them to the right place. और बाइबल बताती है कि पूरब में जो उन्होंने तारा देखा था वो तारा उनको सही जगह पर ले गया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, when you are celebrating this Christmas, जब आप ये बड़ा दिन मना रहे होंगे keep Jesus Christ in the center of Christmas. तो यीशु मसीह को जो अपने बड़े दिन के मध्य में रखें। You and I need to search for him. आप और हमको उसको ढूंढने की आवश्यकता है। The Holy Spirit will lead us to the right place. और पवित्र आत्मा हमको सही स्थान पर ले जाएगा। What is your star? और आपका तारा क्या है? Guiding star. आपका मार्गदर्शन करने वाला तारा। Bible is the guiding star to Jesus Christ. बाइबल जो है वो मार्गदर्शन करने वाला तारा है जो प्रभु यीशु के तक पहुंचाता है। If you have not surrendered your life to Jesus as of now, और यदि अभी तक आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया I है, urge you to do it today. मैं आज आपसे निवेदन करूंगा आज ही ऐसा करें। Become a member of a local church. और एक स्थानीय कलीसिया का भाग बने। Buy a Bible. और एक बाइबल का Read it. उसको पढ़ें, And you will reach to the right place. और तब आप एक सही स्थान पर पहुंच जाएंगे। These three wise men started their journey 2 years ago. और ये जो बुद्धिमान लोग थे इन्होंने 2 साल पहले अपनी यात्रा आरंभ की थी, And finally they went to the right place. और अंत में ये सही स्थान पर पहुंच गए। The Bible says he came to this earth as a child to bear our sins. और आज से 2000 वर्ष पूर्व वो एक बालक के रूप में जन्म लिया ताकि हमारे पापों को ले चले। But now he is coming as a judge of this world. और अब वो एक इस संसार का न्यायी होकर वापस आ रहा You है। can escape this judgment आप इस न्याय से बच सकते हैं only if you receive Jesus Christ and his forgiveness.
और वो तब होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह से उसकी क्षमा को प्राप्त करेंगे You can receive the forgiveness of your sins from Jesus Christ. और आप अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त कर सकते For हैं। this purpose he was born in this world. और इसी उद्देश्य के लिए उसने संसार के अंदर जन्म लिया। So be happy, तो आनंदित हो जाएं be cheerful, my dear brothers and sisters. और मेरे प्रिय भाई अति खुश हो जाएं। Yes, there may be pain in your heart, हो सकता है आपके हृदय में कोई दर्द हो, as I also have, जैसा मेरे हृदय में भी but we है, need to march forward लेकिन हम आगे बढ़ते जाते हैं because we have so much to do for the kingdom of God. Hallelujah. क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के राज्य के करने के लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। We send our warm greetings on this wonderful day to each one of you. और हम आप में से हर एक को इस अद्भुत समय की शुभकामनाएं भेजते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन। Let us pray together. आइए हम मिल करके प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this wonderful morning, Christmas morning. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुबह की बड़े दिन की सब सेवा में। Thank you for sending your dear son into this world as a child. धन्यवाद करते कि पिता आपने अपने प्रिय पुत्र को एक बालक के रूप में संसार में भेजा He grew up और वो बड़ा हुआ and then he started his ministry. और तब उसने अपनी सेवा को आरंभ He किया। was sinless. वो पाप रहित था। He went to the cross, वो क्रूस पर गया। died on the cross. वो क्रूस पर मारा गया He was taken to the grave. और वो कब्र तक पहुंचाया गया He stayed in the grave for 3 days. और वो कब्र में 3 दिन तक रहा 3rd day he came back from the dead. और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा And today he is alive. और आज वो जीवित है He is coming back to judge the world. और वो फिर से आने वाला संसार का न्याय करने के लिए। Lord, we thank you for this wonderful gift that you have given to this world. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं संसार को एक अद्भुत उपहार देने के लिए। Lord, we pray that as our brothers and sisters are celebrating Christmas, प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं अपने भाई बहनों के लिए जो आज बड़े दिन को मना रहे हैं। let us not forget to bring Jesus in our family, in our hearts, in our programs. प्रभु जी, हम भूल ना जाएं प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवार में, अपने कार्यक्रमों में। We bless our dear brothers and sisters. हम अपने भाई बहनों को आशीषित करते हैं And we send warm Christmas greetings to each one of those who are watching this video. और हर एक उस भाई बहन को हम हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं जो इस वीडियो को देख रहे And हैं। in Jesus' name we pray. और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन And amen. और आमीन। God bless you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको आशीष दे Enjoy the day with the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के साथ इस दिन का आनंद मनाएं। Share Christ with others, those who do not know Him. और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनको प्रभु के बारे में बताएं। Yes, call them to the dinner party, जी हाँ, उनको अपने रात्रि के भोजन में निमंत्रण दें, cake party, केक की पार्टी में, coffee, कॉफी, and bless them with the Savior of the world. और उनको इस संसार के उद्धारकर्ता से आशीष दें। Hallelujah. हालेलुया। We will also do likewise. और हम भी ऐसा ही करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।